بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں صدف عبدالجبار اور اشفاق ساتھی میرے ساتھ ہیں، ہم دونوں نے آج بلیک پہنا ہے ماشاءاللہ 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 آج یوم تھوڑا سیاہ ہم منا رہے ہیں۔ وہ ابھی میں اور صدف یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب میچ کب تک دیکھا، صدف نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا انٹائر میچ دیکھا ٹل دی لاسٹ بال، میں نے کہا بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو وہ آخری جو وہ بال تک ہم نے یہ سفر دیکھا، لیکن جو امید تھی، جو توقع تھی، جو ایک یونٹ ہم دیکھنا چاہتے تھے، جو نمبر 1 ہماری ٹیم تھی، وہ ویسا ہو نہ سکا۔ اور سری لنکا نے ویسے ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ سری لنکن ٹیم جو ہے، آپ یہ دیکھیں 11ویں دفعہ ایشیا کپ کا فائنل they always perform best in the Asia Cup۔ لیکن مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیریٹری، ہمارا جو آغاز تھا بڑا اچھا تھا، بڑی بڑی ٹیمیں، ایسے بڑے بڑے کھلاڑی ہمیں فیوریٹ قرار دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ فائنل ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ ہوا کیا، یہ بھارت کے میچ سے جو کایا پلٹی تو پلٹ ہی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی ہماری بیٹنگ پھر بھی دے پرفارم ویل، لیکن ماشاءاللہ اگر بات کریں تو بولرز نے تھوڑا سا ہمیں، بلکہ کافی مڈل اوورز میں ہم جو وکٹیں پک نہیں کر سکے، پھر بعد میں واپس آئے، میچ جو ہے وہ آخری اوور تک گیا، اور آخری اوور میں جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ صورتحال رہی، لیکن شاداب کو پورا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بیٹنگ بالنگ بلکہ فیلڈنگ میں بھی بالکل پرفارم نہیں کیا، تو وہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں اس بات کو، اب کیا کروں میں۔ چلیں جی شاہینو، ویسے میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، پہلے ہی پتا چل گیا، فائنل میں جا کے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی، تو ہمیں پہلے ہی پتا، ہم دعائیں کر رہے تھے کہ بارش نہ ہو، میچ ہو جائے، ہم تو پچھاڑ دیں گے، لیکن ویلا لاگے کو اچھا کھیلے، رضوان پلیڈ ریلی ویل، عبداللہ شفیق واز انکلوڈیڈ، فخر زمان روٹین کے مطابق بغیر لیکن اچھا مجھے بات بتائیے، جو 42 اوورز تک محدود ہو گیا میچ، تو اس کی وجہ سے فرق بھی پڑا؟ ہماری مینٹیلٹی پہ پڑا، انہیں پتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، بہرحال ساری باتیں یہاں کر لیں گے تو بیٹھ کے کیا کریں گے۔ ہاں، آپ کی ٹون بھی کتنی ہم لوگوں کی ڈاؤن ہے نا۔ چلیں جی ٹاپ سٹوری سے بڑھتے ہیں، اور شو میں بہت کچھ ہے بھائی، کرکٹ بھی ہے اور بھی ہے، ٹاپ سٹوری۔ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ سے باہر، سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا نے شاہینوں کی لنکا ڈھا دی، 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فائنل میں سری لنکا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ کھلاڑی بدل لیے لیکن قسمت بدلی نہ غلطیاں، شاہینوں کی خراب فیلڈنگ نے سری لنکن بیٹرز کو چانس پہ چانس دیے، چارت سری لنکا کا کیچ محمد رضوان نے ڈراپ کیا، سری لنکا نے آخر میں بازی پلٹ دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں، ہم 1 دن رہیں یا 1 مہینہ رہیں، قانون کے تحت رہیں گے۔ اچھا، لوگوں کے دل بڑے جلے ہوئے ہیں، تو وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لنکن ٹائگرز نے شاہینوں کے پر کتر دیے، مطلب آپ اگر اس کو ویژولائز کریں تو اوف اللہ اوف اللہ، آپ ویژولائز کریں اور آپ دیکھیں اس کو جنگل کی لینگویج میں، جنگل کی لینگویج، پھر جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم کبھی جیت رہا ہوتے ہیں تو شاہینوں نے دبوچ لیا، کیویز نے یہ کر دیا، مطلب ہم جانور بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ مطلب مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی جنگل میں لڑائی تو نہیں ہو رہی، بہرحال کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، لیکن ہم نے جو 2 دفعہ سے جو ہماری پرفارمنس ہے، بالخصوص انڈیا کے بعد سے، تو بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے آپ نے جب میچ دیکھنا شروع کیا تب آپ کی کیا امید تھی، کیا ایکسپیکٹیشن تھی، کتنے پرسنٹ آپ کو لگ رہا تھا کہ آج کا میچ؟ جب حسب روایت فخر آؤٹ ہوئے، آئی واز کنسرنڈ بٹ اینٹیسپیٹنگ دیٹ، عبداللہ شفیق نے جس طرح سے آ کے ریپیئر ورک کیا، یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آؤٹ ہوئے تھے، اور یہ بابر اعظم جس طرح سے آؤٹ ہوئے، اگر ہم یہ دکھا سکیں ذرا پہلے وکٹیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ they got also unfit because of the weather conditions, humid conditions سے بہت زیادہ کریمپس آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں عبداللہ شفیق بھی جب کھیل رہے تھے تو گراؤنڈ میں ان کو کریمپس وغیرہ کے کافی ایشوز ہو رہے تھے، تو دیٹ واز اے پرابلم، لیکن عبداللہ شفیق واز اے ویری گڈ انکلوژن ان دا ٹیم۔ فخر زمان کی میں بات کر رہا ہوں کہ فخر زمان ہی از اے بریلینٹ پلیئر، لیکن کب تک ہم اپریل میں ان کی ماری گئی 3 سینچریز، جن میں سے 2 سینچریز ایک نیوزی لینڈ کے بڑے
कमज़ोर सी बॉलिंग लाइनअप के सामने मारी थी, उसको लेके उनको सामने चलते रहेंगे। कब तक हम शादाब को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे? बिकॉज बात यह है कि वी नो ही इज अ ब्रिलियंट T20 बॉलर। अशफाक जब इंडियन नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था देखें जी ये तो IPL में खेलते रहेंगे, इनको पता ही कैसे चलेगा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली है, उनका एक्सपोजर बहुत है। व्हाट अबाउट दैट एक्सपोजर? एग्जैक्टली यही मसला है। अच्छा, अब देख लें कि विकेटें वगैरह कैसी गिरी श्रीलंका की, और जो कैचेस ड्रॉप हुए उस पर भी बात करते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। और शाहिद साहब यू हैव ऑलवेज बीन सो पॉजिटिव, लेकिन मुझे बताएं ये क्या हुआ? बड़ा ज़बरदस्त हमारा सफ़र शुरू हुआ था, फिर इंडिया से मैच खेला, फिर श्रीलंका से खेला, कहाँ क्या कल के मैच की बात करें, कहाँ पे गलतियाँ हुई? हमें 2-3 बड़े मेन प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम प्रॉपर सही सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बैटिंग में इंटेंट नहीं है, हमारे स्पिनर्स विकेट टेकिंग नहीं है। हमें 2 क्रूशियल इंजरीज हो गई, हारिस रऊफ और नसीम शाह की। और 5वीं और आखिरी, हमारी कप्तान को एग्रेशन चाहिए, उसको विकेटें चाहिए। 252 आराम से डिफेंड होने वाला टोटल था, लेकिन बाबर ने कल पहली 1 विकेट लेने के बाद स्लिप निकाल दी। पूरा मौका दिया श्रीलंका के बैट्समैनों को सेट हो जाएं। वो चाहते हैं कि वो पूरे ओवर कराएं, वो नहीं चाहते कि मैच जल्दी खत्म हो। 252 रन अगर रोकने हैं तो आप नहीं रोकते, आप विकेटें लेकर सामने वाली टीम को आउट कर सकते हैं और सामने वाली टीम के खिलाफ मैच जीत सकते हैं। हमने देखा कि 10वीं 11वें ओवर के बाद उन्होंने स्लिप निकाल ली, और आखिरी ओवर में भी 8 रन जमान खान ने ऑलमोस्ट बचा लिए थे। आखिरी 2 गेंदों पे 6 रन बनाने ही नहीं देने चाहिए थे। आपने थर्ड मैन पे बाउंड्री, जब आपको 2 बॉलों पे 6 रन बचाने, आपको हर सूरत में बाउंड्री बचानी है। श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की सूरत में मैच जीत सकता था, लेकिन आपने बाउंड्री के ऊपर फील्डर नहीं लिया, थर्ड मैन पे फील्डर नहीं लिया, जहां पे हमेशा गेंद जाती है, और एज लगा, चौका हुआ, और फिर काम आसान हो गया। शायद भाई एक और चीज भी है ना कि जब आप देख रहे थे कि वहीं उसी लेंथ पर बैट्समैन बीट हो रहा है, तो देयर वाज अ चांस कि एज होगा। और एज जाहिर है कि जो उनका स्लिंगी एक्शन है, जिस तरह से एंगल है, तो वो बॉल जाहिर है निकल सकती है, फर्स्ट स्लिप से निकल सकती है, सेकंड स्लिप से निकल सकती है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मुझे ये बताइए कि शादाब के हवाले से अक्सर डिबेट होती रही है, आज फिर वही बात हुई, यानी कि एक उन्होंने विकेट ली, बैटिंग में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। फील्डिंग में आपको पता है कि शाहीन के ओवर में जब 36 रन चाहिए थे, बॉल उनके पास सीधी गई, खामखा के ओवर थ्रो उसके 2 रन, और जब एक रन मैटर करता है तो वो उन्होंने दिया। बॉलिंग में विकेट ली, और उसके बाद विकेट लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वहां उसके बाद वही या तो फुल टॉस या फिर हाफ ट्रैकर्स। क्या कहेंगे आप? हमें बहुत जल्द शादाब के ऊपर फैसला करना पड़ेगा। वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन वो रन नहीं बना रहा, और उसका असल काम जो है विकेट लेना, वो विकेट नहीं ले रहा। उसने बड़ा अच्छा रन आउट किया था कुशाल परेरा को शुरू में, जो कुशाल परेरा बड़ी हिटिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा रन आउट किया था। वो अपने एक एक्शन से बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसका जो असल काम है वो विकेट लेना है, वहां पे वो नाकाम हो रहा है। उसामा मीर आपके बैठा था, आपने जब इतनी तब्दीलियां की थी तो कम से कम उसामा मीर को भी खिला लेते। ना तो उससे बुखार था, ना ही उसको कमर में तकलीफ, तो आपने उसको क्यों नहीं खिलाया? लेकिन ये चीजें आपको लग रही हैं शायद साहब, एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिसी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा T20 सेंट्रिक हो गई है। हमारे पास ODIs के लिए कोई प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है। आपको लगता है कि उसामा मीर कैन बी अ सोल्यूशन फॉर दैट? बिकॉज माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है इन ODIs। जल्दी वाइट बॉल में आपको बहुत जल्दी फैसला करना होगा कि ये आपके T20 के प्लेयर हैं और ये आपके वनडे के प्लेयर हैं। उसामा मीर आउट एंड आउट एक 10 ओवर का बॉलर है। अभी पाकिस्तान का पिछले साल जो हुआ है उस हाईएस्ट विकेट टेकर है। पाकिस्तान कप 50 ओवर्स की क्रिकेट होती है। आप फैसला करना है। मोहम्मद हारिस आपका T20 का प्लेयर है, शाहिद साहब, हसीबुल्ला आपका 50 का प्लेयर है। हमें पता था कि एशिया कप में भी वनडे फॉर्मेट है इस बार, वर्ल्ड कप में भी। वर्ल्ड कप अब है ही कितना दूर। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब सारा फोकस यहाँ से हट के वर्ल्ड कप की तरफ जा रहा है, तो अब हमारी क्या स्क्वाड होना चाहिए? हमने इस एशिया कप के लास्ट मैचेस में भी हमने बड़ी चेंजेस करके देख लिए। तो आपकी नज़र में अब टीम क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, अब तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा।
15 से 18 दिन आपके पास हैं, आप पैनिक बटन ना दबाएं। जिन प्लेयरों के ऊपर आप 1-1.5 साल से लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, उन्हीं को आप एतमाद दें, उनको कहें आप अच्छे प्लेयर हैं, आप जाएं वर्ल्ड कप खेलें। हम हमेशा से, जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं, हमेशा से ये सुना है कि वर्ल्ड कप में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वर्ल्ड कप में भी इसी तरह चले जाएं, वहां से आकर कहें कि जी अब हम अगले वर्ल्ड कप यानी 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो अचानक से पाकिस्तान की टीम, या तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप की भी फेवरेट थी, वर्ल्ड कप की भी फेवरेट थी, एकदम से पीछे चली गई। अब हमारे पहले 2 मैच नेदरलैंड से और दूसरा मैच श्रीलंका से है, हमें यही 2 मैच भारी पड़ रहे हैं, तो तीसरा मैच तो हमारा इंडिया से भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि एशिया कप में तो श्रीलंका कह देता है कि ये हमारी टेरिटरी है। और आप अंदाजा करें कि वो 4 अपने मेन बॉलर्स के बगैर खेल रहे थे, लेकिन स्टिल दे परफॉर्म्ड ओकेश। अब जरा मुझे ये बताएं कि अब वर्ल्ड कप का जाहिर है कि हमारा स्क्वाड भी अनाउंस होना है। अब्दुल्ला शफीक, ही प्लेड ब्रिलियंटली, ही शोड इंटेंट, ठीक है, जहां पर उनके खिलाफ अपील हुई, अगली बॉल पे छक्का मारा, मतलब एक एग्रेशन नजर आई। सऊद शकील वो अनलकी कि खेल नहीं पाए, लेकिन आपको लगता है कि ये 2 प्लेयर्स स्क्वाड में जगह बना पाएंगे? अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आपको फैसला करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने सऊद शकील को तो चांस भी नहीं दिया, जहां उनको चांस मिलना था वो बेचारे अनलकी हो गए, उन्हें बुखार आ गया। तो आपको बहुत जल्दी ये फैसला करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। पाकिस्तान की टीम ने अपने 15 नाम सबमिट कर दिए हैं आईसीसी को, लेकिन आप 27 सितंबर तक उसमें तब्दीली कर सकते हैं। 28 सितंबर को आप तब्दीली करने जाएंगे तो आपको आईसीसी को बताना पड़ेगा कि इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। 27 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आपने 15 सबमिट किए हुए हैं, लेकिन आप उस 15 में 15 के 15 चेंज कर सकते हैं, 14 चेंज कर सकते हैं, बाबर आजम को रखें, बाकी 14 चेंज कर दें, लेकिन आपको अब्दुल्ला शफीक के बारे में फैसला करना पड़ेगा। आप ये वो प्लेयर हैं जिनको आप लेकर साथ चल रहे हैं, अगर आपने फैसला करना है तो आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं बस। तो और बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? इस टूर्नामेंट में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, बड़ा रिलाय करते हैं, कुछ नाम होते हैं जिनके नाम से, जैसे रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, बाबर हो गया, इंडिया में विराट के ऊपर बड़ा रिलाय किया जाता है। यस, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? बाबर आजम परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, रन भी इस एशिया कप में उन्होंने नहीं बनाया, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से थोड़ा सा घबरा रहे हैं और बार बार ये इस खतरे में रहते हैं कि गेंद अंदर आएगी, वो गेंद अंदर आने के चक्कर में खेले और स्टंप हो गए। गेंद अंदर आई थी, हार्दिक पांड्या ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उनके पास टीम बुरी नहीं है, उनके पास प्लेयर बुरे नहीं है, उन्हें सही फैसले करने होंगे, सही सिलेक्शन और सही अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी होगी, इंटेंट शो करना पड़ेगा जीतने का। वो जिस तरह स्लिप नहीं लेते, उनको शायद स्लिप रखने से नफरत है, वो अगर स्लिप नहीं रखेंगे तो उनकी कभी भी विकेट नहीं मिलेंगी। इवन स्पिनर पे भी आपको स्लिप रखनी पड़ेगी, अगर आप स्लिप नहीं रखेंगे आपको विकेट नहीं मिलेगी। और आप ये कोशिश मत करें कि आपने पूरे ओवर कराने सामने वाली टीम को, मैंडेटरी नहीं होता पूरे ओवर कराना, आप ओवर से कम में भी मैच फिनिश कर सकते हैं। ये बात बाबर आजम को सीखनी होगी। ऐसे 8 से 10 मैच हैं, उन्होंने 4 विकेटें 5 विकेटें शुरू में लेकर मैच जाया कर दिया। अच्छा, और वर्ल्ड कप के हवाले से क्या आप समझते हैं कि अब आप, जाहिर है कि स्क्वाड वैसे अब तक जो जमा करा है वो है क्या, डू यू हैव द नेम्स, और उसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनको थोड़ा सा वापस खींचा जा सकता है उनके नामों को? देखिए, एशिया कप का जो स्क्वाड था उसमें सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, ये 2 प्लेयर नहीं है उस 15 में। फहीम अशरफ और सऊद शकील पे डिबेट चल रही थी कि इनमें से कोई एक 15 में शामिल होगा, तो अब्दुल्ला शफीक नहीं थे। उनके नाम पर गौर करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास डोमेस्टिक में कोई एक विकेट टेकिंग स्पिनर है। अबरार है ऐसा स्पिनर जो विकेट टेकिंग स्पिनर है। अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो आप अबरार पे फैसला कर लें या इमाद वसीम पे फैसला कर लें, लेकिन ये जल्दी करें, आपके पास 27 सितंबर तक का वक्त। और दूसरी चीज ये है ना कि अबरार कम से कम बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन विकेट टू विकेट बॉल करने का ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल, विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा स्पिनर तो उसको रन नहीं पड़ेंगे उसको विकेट लेने की, लेकिन साथ ही साथ आपको अग्रेसिव अप्रोच, कल अगर जब नवाज बॉलिंग कर रहे थे या शादाब बॉलिंग कर रहे थे, एक स्लिप और एक क्लोजिंग फील्डर ले लेते तो कम से कम बैट्समैन पे भी तो प्रेशर होता कि यार ये विकेट लेने के चक्कर में या हमें इजी रन देने के चक्कर में नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बाबर के साथ, और टीम मैनेजमेंट वाज़े अल्फाज में कह रही है कि हम उन्हें कहते हैं स्लिप लो, हम उन्हें कहते हैं
तेज बैटिंग करो। हमने बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें कहा था कि 30 ओवर में टारगेट पूरा कर लें ताकि नेट रन रेट सही हो जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की बात नहीं पूरी हो रही। सुन लें बाबर, सुन लें, किसी की तो सुन लें। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। और ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब से मुताल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का केस है और परवेज इलाही साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी और दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई है। दैट इज़ द अपडेट। और फिर ये है कि वकील हैं उनके बाबर आवान, उनकी जानिब से इस मौके पर दलाइल दिए गए और जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस मामले की समाअत की है और दरख्वास्त ज़मानत चौधरी परवेज इलाही की मंजूर कर ली गई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि खबरें जब पढ़ रहे होते हैं अक्सर न्यूज़ एंकर, तो बाबर अवान को बाबर आजम और बाबर आजम को बाबर अवान, वो ऐसा होता स्वाति साहब को, अगर वो कभी जो है वो खबर ऊपर नीचे हो जाए। और एक और कोई हैं जिनको सब वजीर आजम पढ़ते थे, वही ना, विफाकी वजीर आजम स्वाति, उनके साथ ये होता था जी वजीर आजम स्वाति। तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ ऐसा होता है, तो अक्सर बेशतर न्यूज एंकर से ब्लूपर्स हो जाते हैं। अच्छा जी, हम अब खेल के मैदान से सियासत के मैदान में आते हैं। कल बड़ा अहम इंटरव्यू AIY न्यूज पर चला जी निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का, और जो सबसे अहम सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है जी इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शन कराने की क्या आपकी जिम्मेदारी, आप क्या समझते हैं क्या है? तो वो ये जी कहते हैं कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है, इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। फिर ये पूछा उनसे कि ये बताएं जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा है जिसमें उन्होंने डेट सजेस्ट कर दी, उसे आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा देखें जी, अभी फिलहाल एज वी स्पीक सदर साहब का जो खत है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हालांकि वो कह रहे हैं मैं संजीदा समझ रहा हूँ सदर साहब के खत को, लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां से जो फैसला आएगा फिर हम उस पर अमल दरामद करेंगे, जैसे पहले किया था। लेकिन क्या कह रहे हैं देखते हैं। आपसे हो रहा है, पे दर पे हो रहा है, हर इंटरव्यू में हो रहा है, रोजाना हो रहा है, तो इसके ऊपर तो आपकी ओपिनियन बहुत, मेरे लिए तो एटलीस्ट जरूरी है, जरूरत थी या नहीं थी, बिकॉज यू ऑल सीम वेरी क्लियर ऑन व्हाट द लॉ सेज और व्हाट्स रिक्वायर्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, अपने एक्सरसाइज उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है, वो अपने प्रोसेस को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तक पहुंची है और वो उस पर अपना फैसला सादर करेंगे कब उनको, हम 1 दिन रहेंगे या 1 महीना रहेंगे, वो रहेंगे कानून के तहत। 3 माह हो सकता है, 3.25 माह हो सकता है, 3.25 माह मैं हो सकता है 6 हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है साल हो। देखिए अब वो इसीलिए मैं आपके इस जवाब की तरफ डेफिनेटिव आंसर्स में नहीं आना चाह रहा। कराना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिशियल कंक्लूजन नहीं आता, वी आर बाउंड टू फॉलो दिस पोजीशन। हम दोबारा उस खत को, उसका कोई कानूनी पहलू है ही नहीं। कानूनी पहलू उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस पर कोई डिसीजन अगर कोई देगी। आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमतें हैं उनको कानूनी और लीगल तस्वर करते हैं? जी हैं आज भी आपकी नजर में? जी। ऐसा कोई तहरीक इंसाफ पे बैन का कोई समरी आई, आपकी कैबिनेट उसको खारिजुल इम्कान करती है, यू विल नॉट इवन कंसिडर इट और यू विल लुक इनटू इट? ये मैं ज़रूर इंश्योर कर दूं कि हम उसको पूरे मेरिट पे उसकी डेलिब्रेशन करेंगे और जो अपने तय हमें दुरुस्त लगा हम वो करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का आज बड़ा अहम इजलास है और इस इजलास के बारे में पहले से ही बिलावल ने कह दिया था कि देखें, मैं घर के मामलात मानने के लिए सदर जरदारी का पाबंद हूँ, लेकिन जो सियासी मामलात हैं उसका फैसला हमारी पार्टी करती है। तो आज CEC का उनका इजलास है और शाजिया मरी कहती हैं जी कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। व्हाई सो मच कंफ्यूजन? भाई आप आम खाएं, आप दरख्त क्यों गिन रहे हैं? हाँ, है ना, मतलब आपको डेट मिल गई, हाँ। अब आप क्यों कह रहे हैं कि जी क्यों दी तारीख, क्या जा रहे हैं? वो बेसिकली एतराज इस चीज पे नहीं है, एतराज इस चीज पे है कि उन्होंने एक डेट नहीं दी, उन्होंने तजवीज दी है। एक तजवीज दी है, तजवीज मानना ना मानना आपके अपने ना माने, तजवीज देने में लेकिन वैसे तजवीज, हाँ, लेकिन सदर साहब जो है वो डेट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देना चाहें तो। खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो जिस जानिब इशारा करिए वो गलत नहीं है वैसे तो। खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो इंटरव्यू था मेहर बुखारी साहिबा का, वो आपने भी देखा होगा, जाहिर है बड़ा एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू उसमें उन्होंने की है निगरां वजीर आजम ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 1 दिन रहें या 1 महीना कानून के तहत रहेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर आइन और कानून के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हमें दिखाई देती हैं थैंक्स टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो ये कानून के तहत रहेंगे, आइन का उन्होंने तस्करा नहीं किया।
क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखें, आपने सुना जो निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, उसके बाद मैं शादिया मरी साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपने सुनाई, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये दोनों हजरात एक बात कर रहे हैं आइन और कानून की, इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर हर कोई बंदा जो बात कर रहा है वो आइन और कानून की। मैं और सुबह आप बैठ के भी आइन और कानून आर्टिकल, उसके मुख्तलिफ आर्टिकल क्लासेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मजलूम एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी जमहूरियत के अंदर एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, वो है आईन पाकिस्तान। तो इस वक्त माशाल्लाह से हम सरजमीन बेआइन बन चुके हुए हैं। हर बंदा अपनी मर्जी की, अपनी मंशा के मुताबिक आइन की तशरीह कर रहा है और उसी तशरीह को लेके वो कह रहे हैं कि यही फाइनल है, ये इसी को लेके आगे बढ़ना है। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर दो जो निज़ाम जमहूरियत जो है वो मौजूद है, एक पार्लिमानी है और एक सदारत का। पार्लिमानी हमारा है जो कि यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया के सिस्टम को फॉलो किया जाता है दुनिया के अंदर, और एक सदारती निज़ाम जो कि अमेरिका का है। इन दोनों निज़ामों के अंदर एक जो कॉमन जो चीज है वो ये है कि जो इलेक्शन करवाने का मरहला है उसके ऊपर किसी भी तरह का ना कोई इबहाम है, ना कोई कंप्रोमाइज है, ना किसी भी तरह के शकूक व शबात है। आपको आइंदा 50 साल 100 साल बाद भी पता है अमेरिका के अंदर के कौन सी तारीख को इलेक्शन होने हैं। इसी तरह जो है यूके के अंदर कोई मसला दरपेश होता है, हुकूमत नाकाम होती है, हुकूमत को किसी इशू के ऊपर फैसला चाहिए होता है जिसके ऊपर ब्रेक्जिट के टाइम पे कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, प्रोसेस नहीं रुका, सिस्टम। अच्छा, आप इशफाक के सवाल में जब वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक दिन रहे, एक महीना रहे, कानून के मुताबिक रहेंगे, तो मेहर साहिबा ने सवाल किया कि पंजाब केवी में जो निगरा हुकूमत है उन्हें आप कानूनी समझते हैं? तो वो कहते हैं जी कानूनी है। तो ये कनेक्शन के कहाँ से, क्या कानूनी कवर हासिल है और फिर किस तरफ इशारा कर रहा है निगरान वज़ीर आज़म? मैंने थोड़ी देर पहले ही सदर से अर्ज किया कि मतलब यह है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस आइन और किस कानून की बात कर रहे हैं। वहाँ पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया? ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम तब से तजिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, एक खबर गुमन साहब, ये चीज जिस आप तर्ज की बात कर रहे हैं ना, कल हमारी बात हो रही थी कंवर दिलशाद साहब से और मुझे बड़ी उस वक्त हैरत हुई। और जाहिर है कि जब उन्होंने कहा कि आप आइन का, हमने कहा कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि आइन ये कहता है। उन्होंने कहा कि बाकी कौन से आइन के शिकों की पासदारी हो रही होती है, उन्होंने 3-4 शिकें गिनवा दी। तो उस पर मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगर एक गलत है तो वो दूसरी जी हाँ कि कौमी ज़ुबान जो है वो इतने अरसे में राइज हो जाएगी, कुछ और चीज़ें। मैंने भी कहा कि भाई इस तरह तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच से लेके राइट टू एजुकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इसका एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर देता। और ये तौजीह देना बड़ी अजीब सी बात है, और ख़ास तौर पर इतने मुस्तनद लोगों की जानिब से जिनको आइन और कानून का पता है। तो ये क्या हो रहा है आखिर खिलवाड़? अब वही मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया ना थोड़ी देर पहले कि हर कोई अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हस्बे जायका जो है वो आइन की तशरीह कर रहा है, जो जितना उसको वो मुनासिब लगता है, जितना वो हजम कर सकता है, जितनी उसको भूख है, उसी के मुताबिक वो आइन के हवाले से जो है वो उसको डाइजेस्ट करने की, वो पंजाबी में कहते हैं उसको, उसके ऊपर चुगाली करने की उतनी ही कोशिश कर रहा है। मसला ये है कि देखिए ये जो मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स का हवाला दे रहे हैं वो रिकमेंडेटरी है, उनके रिकमेंडेशन है कि ये काम होने चाहिए। ये तो एक बहुत वाज़ेह चीज है। देखिए एक निजाम की जो बुनियाद है, पाकिस्तान का जो आइन है उसका अभी आप अपने सामने रखें, उसकी जो 3-4 लाइन है उसके अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद जो हाकमियत का हक है वो अवाम के पास है। लिहाजा रियासत पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार है वो अवाम के जो है उनके जो इलेक्टेड शुदा हैं, जिन्होंने उनको मुंतखब करना है, उनके जरिए जो है इक़्तिदार का उन्होंने करना है, हुकूमत करनी है। अब वो जो प्रोसेस है उसी को हम खत्म कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, वो जो अवाम के पास ये हक है उसको हम देख लेंगे कब इसको हक को हमने इस्तेमाल करना है। फिल वक्त जो हम समझते हैं कि ये हमारा हक है तो इसी को हम अपने सामने रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में जो तमाम तर नजरें हैं मेरी और आपकी अब आने वाले चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हैं। आज मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनका आखिरी दिन है और जाहिर है इससे पहले यही एक राय थी कि जी ये जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं उन्होंने अदालत के अंदर एक तकसीम की हुई है, कुछ इनके हम ख्याल हैं, कुछ जस्टिस काजी फायजी साहब के हम ख्याल हैं। लिहाजा अब ये है
कल से नए चीफ जस्टिस साहब मौजूद होंगे और हमें उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि वो आएंगे, एक फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे और ये जो तमाम आईनी इबहाम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है जिसके मुताबिक जो है वो मामला को आगे लेके चलना चाहता है, उसके ऊपर फैसले आएंगे और ना सिर्फ फैसले आएंगे, उसके उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह हम हर किसी ने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना ली तो फिर रियासत की जो बुनियादें हैं, जो फेडरेशन है, हमारा वफाक है, उसको खुदा न खास्ता हाकिम बदहम जो है खतरा होने के लायक। थैंक यू सो मच खबर कुमन साहब। हाँ जी, ब्रेक ले रहे हम, एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जदीद दौर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बाकायदा अब एक इंडस्ट्री बन गई है। लोग अपने चैनल्स बनाते हैं, कंटेंट उस पर क्रिएट करते हैं, वो कंटेंट अपलोड करते हैं, फिर लोगों के व्यूज़ मिलते हैं, वो मोनेटाइज हो जाता है। तो ये एक तरह की पैरेलल इनकम है कि अगर लोगों को शौक भी होता है, लेकिन अगर किसी को फाइनेंशियली ये लगता है कि जी हम इतने स्टेबल नहीं हैं तो वो इस तरफ भी जाते हैं, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन जो शहर कायद है, मैं सुबह अशफाक आपसे मेकअप में यही बात कर रही थी कि जब हम कराची की कोई भी खबर डिस्कस करते हैं तो या तो वो किसी के मरने की होती है, किसी के लुटने की होती है, किसी के गटर में गिर जाने की होती है, हम कराची को डिस्कस ही, क्योंकि खबरें ही ये हैं। अब जनाब आपको बता दें कि वैसे तो आपने देखा होगा किसी को बैंक से निकलते हुए पैसे लूट लिए, यहाँ पर एक यूट्यूबर को लूटा है और उनके जो गैजेट्स थे, उनका जो सामान था जिसके थ्रू वो तमाम तरह अपनी क्रिएशन करती हैं, वो लूट लिया गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यूट्यूबिंग वैसे अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए होता है, फिर एफर्ट भी करना पड़ता है। शुरुआत मोबाइल कैमरे से होती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन्वेस्ट करते हैं, बेहतर अपने आप को जैसे जैसे आप जानना शुरू होते हैं। फिर दूसरा, जब आप कर रहे होते हैं काम, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द से भी बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और ऐसे में ये वारदातें आपको पता है कि ये तवातुर से ही हो रही होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लिक बेट्स के ज़रिए लोगों को मुतासर करते हैं, तरह तरह की क्लिक बेट्स लगा के करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाकायदा तौर पर प्रोफेशनली काम भी करें, क्योंकि डिजिटल टीवी चैनल्स भी कुछ ऐसे हैं डिजिटल मीडिया पे। अच्छा, माहम जहरा भी ऐसी ही हैं, उनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल भी है और एक काम भी करती हैं एक यूट्यूब चैनल के लिए, डिजिटल एक मीडियम के लिए। तो 5 स्टार चौरंगी है कराची का एक इलाका, जिसको मैं ये कहता हूँ कि वो भी एक कंप्लीट फूड स्ट्रीट ही है, और वहाँ पर हर वक्त ही अगर आप देखा जाए तो शाम के वक्त खास तौर पर बिलखुसूस वहाँ पर काफ़ी क्राउडेड होता है, और हाँ जी, वहाँ पर लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। मुझे भी काफ़ी बार जाने का वहाँ पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन उनसे उनकी एसेसरीज, उनके गैजेट्स छीन लिए गए। किस वक्त ये वारदात पेश आई, कैसे 2.5 साल की मेहनत क्या हुआ? माहम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये अच्छा 5 स्टार का इलाका, आपको पता है कि अब जैसे रोड्स वगैरह बन गई, सारा कुछ हो गया, बड़ा डेवलप हो गया, मतलब वहाँ पर जाएं उस एरिया की लुक ही अब डिफरेंट नजर आती है, लेकिन वहाँ पर एंटिसिपेट आप नहीं कर सकते कि इस नौयत की वारदात हो सकती है। ये वक्त क्या था जब ये आपके साथ ये वाकया पेश आया? जो वक्त था वो 1:50 मैं लास्ट टाइम अपने फोन में देखा है 1:44 दिन में, मतलब रात में जी। और आपके पास सामान क्या क्या था? आपके साथ हुआ या नहीं, ये 11 तारीख की रात को। अच्छा, 11 तारीख की रात। सामान क्या क्या था? सुना आपका कैमरा DSLR था, जिसकी एक बड़ी रकम होती है विद लेंस। मेरे पास DSLR कैमरा था, कैमरे की जो सारी इक्विपमेंट्स होती हैं, लेंस था, ट्राइपॉड था, कैमरा लाइट थी, 2 माइक्स थे मेरे पास, बैटरीज वगैरह सब कुछ। हम लोग सारी चीज़ें एक साथ लेके जाते हैं, जाहिर है कहीं भी बैटरी अगर ख़त्म हो गई तो हमें चार्ज पे भी लगानी पड़ती है। तो 0 to 100 सारी इक्विपमेंट्स मेरी वो उस बैग में ही थी, और वो पूरा बैग ही वो अपने साथ ले गए। आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे? मेरे हस्बैंड थे, वही होते हैं मेरे साथ। मेरी जो कैमरा मैंने मेरे हस्बैंड लिया, मैं अकेली नहीं थी। लेकिन जाहिर है किसी बंदूक के सामने कोई क्या कर सकते हैं? कितने लोग आए थे? बाइक पे थे? किस तरह आए थे? बाइक पे थे, एक अकेला बंदा। ना करें, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने, हम लोग तो जिस कार्ड की हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं उस लेडी से बात कर रही थी, बिल्कुल मेरी यही पोजीशन थी, और वो यहाँ ये फुटपाथ है, मैं इस पे एक चेयर पे बैठी हुई थी, और यहाँ पे वो बंदा आया, मुझे यही लगा कि कोई कस्टमर है, ऑर्डर के लिए आया है। जब उसने गन लोड करी है, जब उसकी आवाज़ आई है, जब मैंने उसकी तरफ पलट के देखा तो मैंने सिर्फ ये मंजर देखा कि वो जो गन है मेरे हस्बैंड के दिल पे रखी ओह माय गॉड, और हम दोनों ब्लैंक हो गए उस वक्त। उसने जैसा कहा, हम कहा कि मुझे अपने जो भी तुम्हारे पास, सबसे पहले उसने ये कहा मोबाइल दो। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने दोनों फोन इत्तेफाकन उनके ही हाथ में थे, तो उन्होंने दोनों फोन उसके हाथ में आपका भी, उनका मेरा भी और उनका ठीक है।
फिर उसके बाद जो है उसने कहा बैग उतारो, बैग दो, मेरे हस्बैंड ने बैग उतार के उनको दिया, फिर वो पलट गया, फिर उसको याद आया कि वॉलेट भी लेना होता है हमने। अच्छा। फिर वो पलटा है। आप लोगों ने उस वक्त जाहिर है कि उस वक्त इंसान सुन हो जाते हैं, कैसे बिल्कुल कहते थे, कोई आप सोच के आपके resistance रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ भी आपने नहीं। उसको कहा नहीं कि इसमें तो कैमरा है, इसमें कोई रकम वकम तो है नहीं, तो क्या करोगे? कुछ वो communication देख के आया था। देखिए अच्छा। इतना सेंस तो उस वक्त मुझे भी था कि अगर वो मोस्टली ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं और मोबाइल फोन जो है वो ले जाते हैं, लेकिन अगर उसने बैग भी मांगा तो उसने यकीनन हमें रिकॉर्डिंग करते हुए देखा है, अपनी सारा सामान बैग में रखते हुए देखा है, उसके बाद वो तो आप पैकअप कर चुकी थी उस वक्त? बिल्कुल। हम लोगों ने वहाँ पे कोई 1 से 1.5 घंटा हमने रिकॉर्डिंग करी है, उस वक्त कोई भी नहीं आया। यहाँ हम लोगों ने अपनी सारी इक्विपमेंट्स पैक करी हैं और उसके 5 मिनट के अंदर वो आके सारा अच्छा सामान मुझे एक चीज़ बताएं कि लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है, जब आप वहाँ पर DSLR और ये इन कैमरों की मालियत क्या थी, लेंस की या if you are comfortable to disclose that, लेकिन होती है लाइक 4-5 लाख से कम तो नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही 6 लाख, 7 समझ लें लाख। कि मुझे इस फील्ड में कोई तकरीबन भी 3.5 साल हो गए हैं, और जब मैंने काम का स्टार्ट लिया था उस वक्त मैं एक कैमरामैन हायर करती थी, उसको अपनी सैलरी से उसको मैं पे करती थी, अपनी इनकम से उसको पे करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला किया था कि हम अपनी चीज़ें बनाते हैं और हम इकट्ठे काम करते हैं, और 2.5 साल में मैंने तिनका करके ये चीज़ें मुकम्मल करी थी। और अगर इसकी मालियत की अगर मैं टोटल जो मेरा सामान गया है तो वो तकरीबन भी 3-3.5 लाख का तो होगा। 3-3.5 लाख बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बताएं कि अब लाइक आपने कहा 2.5 साल में, तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं था कि आप आउटडोर इस तरह शूट कर रही हैं? मेरा रेगुलर का है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती अच्छा है। महमूद, दूसरा आपको पता है कि हमारे यहाँ हालात जिस तरह के हैं और ख़ासतौर पर लोग भी ब्लेम ही कर देते हैं। अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो इसी वजह से करते ये हैं कि ख़ासतौर पर आउटडोर्स के लिए वो ये करते हैं कि मोबाइल फ़ोन का सहारा ले देते हैं कि उसके अंदर चलो एक लाइट लगा ली और फिर मोबाइल फ़ोन का सहारा लिया, रिकॉर्ड किया, अल्लाह खैर सल्ला। आपके जहन में कभी आया कि ये रिस्क हो सकता है मैं मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि अब तो उनके अंदर भी कैमरे बड़े अच्छे आ गए हैं, भले एंड्रॉइड हो या iOS हो? बहुत बार आया, लेकिन फिर वही बात है ना कि एक चीज़ जो कैमरे में रिकॉर्ड होता है और जो फ़ोन में होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। FIR वगैरह कुछ कराया आपने? FIR करवाई है, वो भी 3 दिन बाद जाके हुई है। हम लोग 2 दिन तक जो है वो थाने के चक्कर काटते रहे। वो क्या कहते थे? उनका एक ही था कि अभी सिस्टम नहीं चल रहा। FIR उन्होंने रिटर्न मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली थी। जी बिल्कुल, एक रिटर्न एप्लीकेशन उन्होंने मुझसे लिखवाई थी और 2 दिन बाद जाके उन्होंने मेरी FIR जो है वो काटी है। तो आपको कोई किसी पे शक तो नहीं है? दोस्त नुमा दुश्मन कोई? कराची में ये इतना आम है कि मैं किसी पे शक कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, लोग सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो लूट रहे हैं इस वक्त कराची में। बहुत ये मुनासिब आपने काम किया कि आप लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और मज़ीद इंशाल्लाह आप जिस तरह से आपने तिनका करके जोड़ा था तो आई एम श्योर ये है कि आप दोबारा ये करने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी नसीब करे। हमें बहुत दुख है इंसिडेंट से, हमें ये सीखने को मिला है कि जी आप रेजिस्टेंस ना करें, क्योंकि कराची में जो थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस करता है वो अपनी जान। देखिए बात ये है कि जब हुकूमत को आपकी जान और माल की फिक्र ना हो तो ऐसे में आपको खुद ही एहतियात करनी पड़ सकती है, बाकी और क्या हो सकता है। अच्छा ये विसिनिटी देखिए 5 स्टार, थैंक यू सो मच माहम, 5 स्टार चौरंगी पे माहम जहरा के साथ ये वाक़या पेश आया। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक फूड स्ट्रीट है वहाँ पर, फिर उसके बाद करीब ही है सखी हसन, यानी कि बफर जोन का जो इलाका है वहाँ पर सखी हसन चौरंगी, फिर उसके बाद नागिन चौरंगी, वहीं पे दरमियान में ये वाक़या पेश आया कि एक साहब अपनी साहबजादी को 7 साल की बच्ची थी वो, उसको स्कूल लेके जा रहे थे। मरियम स्कूल जाने के लिए घर से तैयार हुई, वालिदैन के साथ मत निकली, और मरियम जब गाड़ी में बैठी तो उसे ये था कि वह स्कूल जाएगी, उसके बच्चों को था कि अपने बेटी को बेहतर तालीम के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन इसी असना में फायरिंग का वाक़या वहाँ पर पेश आया। अंधी गोली जो है वो लगी और उस मासूम बच्ची को, और ऐसे में वो खून में लथपथ हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी और थी। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले अमल का और एक और बच्ची, इफ आई रिकॉल हर नेम, तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उस बच्ची के साथ भी ये वाकया हुआ था। उसके बाद जी बड़ी सिंध हुकूमत जो थी उस वक्त की, उन्होंने बड़ा ज्यादा एक्टिव होकर एक एक्ट भी पास किया था। एक ही इलाके में वाकयात पेश आ रहे हैं। ये सारे वाकयात जो है मतलब ये बताते हैं जी सिस्टम बेहतर किया जा सकता है, लेकिन होता नहीं है। और नई रिजॉल्व के साथ निगरान हुकूमत ने कहा था जी हम स्ट्रीट क्राइम्स का तो खात्मा कर देंगे, हमें 2 हफ्ते दे दें, 1 महीना दे दें। यस, तो हमारे साथ नजीर शाह हैं, नजीर शाह से जान लेते हैं। नजीर जरा बताइएगा ये जो बच्ची है खास तौर पे मरियम, इसके केस में क्या हुआ, पुलिस ने क्या पता लगाया? और सुनने में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बुरसा ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, ऐसे ही है क्या?
بالکل دیکھیں گزشتہ روز یہ بات سننے میں آتی تھی کہ انہوں نے یہ قانونی کارروائی سے انکار کر دیا تھا اور جو یہ بچی مریم ہے بیسیکلی یہ اندھی گولی کا نہیں بلکہ یہ کراس فائرنگ کا نشانہ بنی ہے. جس طرح عمل کیس سامنے تھا یہ عمل کیس سے بہت زیادہ ملتا جلتا کیس ہے کہ ایک بچی جو گاڑی میں بیٹھ کر پچھلی سیٹ پہ جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ڈاکو کے اوپر چلائی جانے والی گولی شیشہ توڑ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے گی. سیکیورٹی گارڈ جو ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ 2 ڈاکو جو لوٹ مار کر رہے تھے جو CCTV فوٹیج میں بھی نظر آ گئے تو ان ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے اس نے یہ گولی چلائی تھی. لیکن یہاں پر تربیت کا بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ تربیت کا فقدان نظر آتا ہے کیونکہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مین روڈ ہے مین سڑک ہے جہاں سے درجنوں گاڑیاں سیکنڈوں میں کراس ہوتی ہیں تو اس کو ڈاکوؤں کو تو بھاگ دینا چاہیے تھا لیکن اتنا بڑا رسک نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اسی کو اصل میں تربیت کہتے ہیں. پولیس میں بھی ریفریشر کورس اسی لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کس جگہ پر گولی چلانی چاہیے کس جگہ پر نہیں. پبلک پلیس میں کبھی بھی پولیس کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکو اگر بھاگتا ہے بھاگ جائے لیکن پبلک میں کبھی بھی گولی نہیں چلائی جاتی. اور اس واقعے میں بھی ایسے ہوئے معصوم بچی جو اسکول جا رہی تھی مریم اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو پولیس نے کچھ دیر بعد اس سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا تھا شک کی بنیاد پہ. اس کے بعد جب اس کی 222 کا فورینسک کیا گیا اور اس بچی کے سر میں گولی لگنے والی اس کا جائزہ لیا گیا تب فورینسک میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ گولی اسی سیکیورٹی گارڈ کے ہتھیار سے نکلی تھی. اچھا اب اگر یہی گولی ڈاکوؤں کے اس سے نکلی ہوتی تو یہ 392 مطلب قتل کی ڈکیتی کے دوران قتل کی اس میں آتی. لیکن اب یہ سیکیورٹی گارڈ نے چونکہ اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ اس بچی کو مارے وہ ان ڈاکوؤں پہ چلانا چاہتا تھا تو ہو سکتا ہے اس میں قتل خطا کی دفعہ لگے اور اس کی سزا وہ نہیں ہو جو ایک عام طور پر قتل والنے کو. لیکن سیکیورٹی گارڈ کمپنیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو گارڈز ہیں ان کو ایسی تربیت دیں کہ وہ کبھی بھی پبلک میں اس طرح فائرنگ نہ کریں اس طرح گولیاں نہ چلائیں جیسے ایک معصوم بچی کی جان گئی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اہل خانہ کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرایا گیا تو پولیس اس میں مقدمہ درج کر سکتی ہے. آپ سوچیں کہ جو فیملی جن کے بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجنا ان کے مستقبل کی تیاری کرنا ان کو پالنا پوسنا بڑا کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اور ایسے میں پلک جھپکتے ہی آپ کے ساتھ یہ سانحہ ہو جائے یعنی کہ جو بچی کل ہنستی مسکراتی آپ کے سامنے موجود تھی آج وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کی مسکراہٹ آپ نہیں دیکھ سکتے اس کی ہنسی کی آواز آپ نہیں سن سکتے اس کی ننھی معصوم باتوں سے آپ محظوظ نہیں ہو سکتے اور اس کو بڑے ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو کامیاب ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹوٹ جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ایسے میں کتنا ان کے لیے زندگی بھر کا صدمہ اس ہے. ویسینٹی میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعات کیوں تواتر سے ہو رہے ہیں. یہ جو علاقہ ہے 5 اسٹار چورنگی ہو یا سخی حسن ہو یہ قریب ہیں یہ دور نہیں ہیں. یہاں پر یہ اتنی لاقانونیت کیوں بڑھ چکی ہے کوئی وجہ تو ہوگی اس کی. دیکھیں لاقانونیت اس لیے بڑھ چکی ہے کہ پہلے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گینگ وار بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھا سیاسی جماعتیں عسکری ونگ بھی ایکٹیو تھے بھتہ خوری ہر چیز عروج پہ تھی. کراچی آپریشن کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا تو ایک جانب تو ان گروہوں کو ختم کیا گیا جو بھتہ خوری دیگر کرتے تھے جس کے بعد اس طرح کے ایلیمنٹس آئے پھر جو چوری ڈکیتی کرنے لگے. تو دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے کراچی میں لاکھوں کی تعداد سے ایسے ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو اپنی ضروریات نشے کو پورا کرنے کے لیے بھی وارداتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے آ کر دوسرے صوبوں سے آ کر بھی یہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں. چل نذیر تھینک یو سو مچ ہمیں اس میں اپڈیٹ دینے کے لیے. اور تھوڑا سا میں یہ بات کہوں گی کہ دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو کانٹینٹ کریٹر ہیں خاص طور پہ یوٹیوبرز وہ باقاعدہ اسٹریٹ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں. اس طرح آپ کے ملک کا امیج اچھا جاتا ہے وہ اپنے شہر کو دکھاتے ہیں اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ صبح کیسے ہوتی ہے شام کیسے ہوتی ہے فلاں مارکیٹ کیسی ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو گاڑی میں بیٹھی بچی جو سیفلی اسکول جا رہی ہے وہ محفوظ نہیں. بالکل. تو پھر یوٹیوبر کے پاس تو پھر ایسے اکوپمنٹ ہے جس کو دیکھ کے کوئی بھی لالچ میں آ سکتا ہے. لیکن سب اپنے آپ اپنے اون پر ہیں اپنی حفاظت آپ خود کریں کسی نے آپ کی حفاظت نہیں کرنی. ایک جشن آزادی والے دن یعنی کہ 14 اگست کو ہم نے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا جب ایک بچہ جو کہ قومی ایک طرح سے پرچم کے یا اس طرح سے ایسے لباس میں ملبوس تھا گرین اینڈ وائٹ میں اور اسی اسنا میں وہ آپ نے دیکھا کہ گٹر میں گرا اور اس کی جان چلی گئی. اس طرح کے واقعات تواتر سے رونما ہوتے رہتے ہیں. 39,000 بتایا جاتا ہے کہ گٹر ایسے ہیں کہ جن کے ڈھکن موجود نہیں ہیں اور ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ میئر کراچی کی جانب سے بھی وعدہ کیا گیا تھا ڈپٹی میئر بھی ہمارے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک یہ ڈھکن نہیں لگ سکے.
اور ایمپریس مارکیٹ کے قریب مصروف ترین شاہراہ پر سڑک کے درمیان کھلا مین ہول انتظامیہ کو اسی طریقے سے ٹونٹ کر رہا ہے, منہ چڑھا رہا ہے. تو اسی پر بتا رہی ہیں مزید عشرت خان. جی ہاں بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں صدر کے ایریے میں موجود ہوں. مین شاہراہ ہے, ساتھ میں ایمپریس مارکیٹ ہے. شاپنگ کے لیے خواتین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, جبکہ یہاں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے شہر کے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے. لیکن درمیان میں ہی مین ہال ہے جو کھلا ہوا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے, لیکن وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائیں. شہری میرے ساتھ موجود ہیں. تقریباً کافی عرصے سے کھلا ہے, اسی طرح پڑا ہوا ہے. کافی سارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, ادھر گاڑیاں وغیرہ ٹوٹی ہیں جناب. کسی نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا اور نہ اس کو بند کیا. ہم نے اپنی مدد کے تحت یہ ڈنڈا لگایا ہوا ہے ذرا آنے جانے والا مسافر جو ہے ٹریفک میں کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ کوئی چھوٹا سا مین ہال نہیں ہے بلکہ بڑا مین ہال ہے جو کہ ٹوٹا ہوا بھی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب سے شہری التجا کر رہے ہیں کہ خدارا جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ پورا کر دیں. شہریوں کا صرف کراچی کی انتظامیہ سے ایک ہی التجا ہے, خدارا شہر کراچی کی طرف نظر کرم کیا جائے. جی عشرت, جب اپنا آخر میں ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا صورتحال ہے, ہم نے ان کے پیچھے دیکھا کہ ایک مین ہول تھا اور اس میں ایک ایسے کر کے ڈنڈا لگا ہوا تھا. یہ کسی اور نے نہیں کیا ہوگا, یہ لوگوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں بی کیئرفل, یہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے. تو آپ بھی جب بھی باہر نکلیں, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, خواتین ہوں بزرگ ہوں, پھونک پھونک کے قدم رکھیں. اب آپ کا یہی کام رہ گیا ہے. ڈونٹ بہیو لائک اے نارمل پرسن. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں پر ڈاکو تو نہیں ہے, کہیں پہ کوئی لوٹنے تو نہیں آ رہا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہیں مین ہول تو نہیں کھلا ہوا. بریک لے لیتے ہیں. ہاتھ صاف رکھیں. یہ گھنٹہ جو ہے وہ اچھی خبروں کے لیے بھی ہم نے چنا ہے. کوشش کی ہے کہ ظاہر ہے کہ حقائق متوازن نہیں ہوتے. اچھی خبر یہ ہے کہ بھائی یہ جو ذخیرہ اندوز ہے نا, مطلب اس وقت کیا مسئلہ ہے, پرائز کنٹرول کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہم کتنی بات کرتے ہیں کہ ایک تو مہنگائی ہے, دوسرا پرائز کنٹرول نہیں ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, ہولڈنگ ہے, بھلے ڈالر ہو, سونا ہو, اشیاء خورنوش ہو, ہر کسی کی ہولڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کو روک کے, پیٹرول ہو تاکہ ان کو روک کے ان کے پیسے بڑھائے جا سکے. کراچی میں رینجرز نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا کیا ہے اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 1 ارب روپے مالیت سے زائد کی ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک تاجر رہنما بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ ہولڈنگ جو کرتے ہیں ان کے خلاف. تو نذیر شاہ سے ذرا ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بتائیے گا نذیر, کیا مزید آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ چیک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 مختلف چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں اور اسلام نگر بلدیہ ڈاؤن اور ہب ریور روڈ پر 2 مختلف گوداموں سے مجموعی طور پر چینی کے 1,40,000 بیگ برآمد کیے جن کی مالیت تقریباً 1 ارب سے زائد بنتی ہے. اور ترجمان رینجرز کے مطابق برآمد چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جانی تھی, جسے مزید قانونی کارروائی کے لیے سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. اور رینجرز کی جانب سے نہ صرف ذخیرہ اندوزوں بلکہ ہائیڈرینٹ اور اسمگلنگ مافیا, غیر قانونی مقیم افغان باشندوں بلکہ دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں. جی شکریہ آپ کا نذیر. ٹھیک ہے, نذیر ہمیں بتا رہے تھے جی. اور اچھی خبروں کی سلسلہ چلا ہے تو ذرا ڈالر کے بارے میں بھی پھر آپ کو بتا دیں کہ ڈالر کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. اور ڈالر کے حوالے سے جی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 61 پیسے سستا ہو کر 296 روپے 35 پیسے پر اس کی ٹریڈ جاری ہے. فوریکس ڈیلرز بتاتے ہیں کہ بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 296 روپے 75 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. تو پچھلے کچھ دنوں میں جو وہ اشفاق جس کا ذکر کر رہے تھے کہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, سختی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے اور ذخیرہ اندوزوں سے چینی بھی برآمد ہو رہی ہے, which is also good. تو اب مطلب یہ وہ چیز ہے جس کا امپیکٹ ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے. تو یہ چیز بھائی زبردست ہوئی ہے اور یہ ہونا ضروری ہے. بالکل جی, یہ ضروری ہے جی. کہ ڈالر کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. اور ڈالر کے حوالے سے جی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 61 پیسے سستا ہو کر 296 روپے 35 پیسے پر اس کی ٹریڈ جاری ہے. فوریکس ڈیلرز بتاتے ہیں کہ بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 296 روپے 75 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. تو پچھلے کچھ دنوں میں جو وہ اشفاق جس کا ذکر کر رہے تھے کہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, سختی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے اور ذخیرہ اندوزوں سے چینی بھی برآمد ہو رہی ہے, which is also good. تو اب مطلب یہ وہ چیز ہے جس کا امپیکٹ ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے. تو یہ چیز بھائی زبردست ہوئی ہے اور یہ ہونا ضروری ہے.
بالکل جی, یہ ضروری ہے جی. اچھا جی, اب ایک اور خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا بڑا ایک احسن اقدام ہے. اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں لاہور میں بزرگ افراد, معذور افراد اور طلباء کے لیے میٹرو بس اور اورنج لائن میٹرو ٹرین میں آج سے مفت سفر کی سہولت پیش کی جا رہی ہے, which is remarkable. I mean, اس دور میں اس سے بہتر یہ کوئی سہولت نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے. 12ویں جماعت تک کے اسکولوں کے طلباء جو اسکول یونیفارم میں ملبوس ہوں اور جن کے پاس اسکول کارڈ ہو, وہ مفت سفری سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کتنا برڈن والدین کا بھی کم ہوگا, بیکاز اٹ از سیف ٹو ٹریول ان. اور دوسرے, آپ ظاہر جب اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو اگر اس میں باقاعدہ طور پہ سفر کی فری سہولت مل رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ جو یونیورسٹی کالج کے بھی ہوں گے ان کو بھی ڈسکاؤنٹ اس میں ملتا ہوگا, آئی ایم شیور. تو یہ ضروری ہے کہ نہیں, یہ فری والی جو بات ہو رہی ہے, میں ادھر ڈسکاؤنٹ کی بات کر رہی ہوں, تو یہاں پہ یہ ہونا ضروری ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچر میں, ویسٹرن ممالک میں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں باقاعدہ طور پہ لاہور میں ایسا ہو رہا ہے, تو دس از ویری گڈ. اور یہ پورے ملک میں یہ سسٹم ہونا چاہیے اور ماسٹرز کے لیے بڑی سہولت ہوگی اس سے. بھائی بالکل جی. اور پھر ظاہر ہے کہ کافی نہ صرف یہ کہ تعلیم کے حوالے سے بھی سہولیت, اور خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں نا رائٹ ٹو ایجوکیشن والا معاملہ, کہ اس کے اندر 6 سے 16 سال تک کی عمر تک مفت تعلیم ہوتی ہے. پھر دوسری جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑی غیر نصابی سرگرمیاں بھی بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اب جس زمانے میں ہم ہیں, جس ایرا میں ہم جی رہے ہیں, جہاں پہ لوگ یوٹیوب پہ اپنا کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں, مختلف طریقہ کار اپنا رہے ہیں, ہر کوئی انوویٹیو اور کریٹیو آئیڈیاز لے کر آ رہا ہے. ایسے میں آپ کی ایجوکیشن کو بھی اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں یہ صرف ایلیٹ کلچر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو وائلن بجانا آتا ہو, کوئی گٹار بجانا جانتا ہو, ان کا ایک شوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی میوزک کی تعلیم اسکول میں دی جائے تو میوزک از اسٹریس. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر ہے جو شامل کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون یا واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو کروانے کا معاملہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے سے انکار کر دیا گیا. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. حسین, کیا وجوہات بتائی گئی ہیں اس کی؟ جی حسین بتائیے گا اس سے متعلق کیا موقف دیا گیا ہے؟ جی بالکل, جوڈیشل کمپلیکس معاملہ یہ کیس تھا, اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور چودھری پرویز الہی جو کہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں, وہ گزشتہ جمعے کو ان کو جوڈیشل کیا تھا, جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا تھا. آج ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین, انہوں نے سماعت کی ہے, جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے آج بھی ضمانت کی مخالفت کی گئی, ریکارڈ پیش کیا گیا. تاہم عدالت نے جو ہے وہ مزید اس کی جو پروسیکیوشن کی سزا تھی وہ مسترد کی ہے, اور چودھری پرویز الہی کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. 20,000 کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. اس سے قبل گزشتہ جمعے کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجا گیا تھا چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر, اور آج ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور ان کو ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسین چودھری. اسکولز کا سالانہ کلسٹر بجٹ غائب کرائے کے مکان میں چلائے جانے والے گرلز اسکول میں نہ ٹیچرز کے لیے کرسی ہے, نہ ڈیسک, اور نہ ہی باتھ روم ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. تو اختر گلفام اس سے متعلق ہمیں مزید بتا دیں. دیکھیں جی, ضلع چمن میں تعلیمی نظام تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. ایک طرف 1 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہے, اور جبکہ اس کے ساتھ جو 48 جو اسکول ہے وہ غیر فعال اور گوشت اسکول کا انکشاف ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اساتذہ ہے زیادہ تر وہ گھروں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تنخواہ لے رہے ہیں. اس وقت میں کلی خانون گورنمنٹ آئی اسکول کے اندر موجود ہوں. 2 سال پہلے جو ہے اسکول کو جو ہے وہ آئی کا درجہ دیا گیا, لیکن یہ اسکول اب تک جو ہے وہ پرائمری چل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک کرائے کے مکان میں چل رہا ہے, جس میں نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی باتھ روم اور نہ ہی اساتذہ ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ اسکول میں کرسی ڈیسک وغیرہ ہے. اسکول کی جو ابتر صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسکول کی بچیاں اور ایک محلے کا ایک شخص موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. بچے سارا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے نا, اور اس کے نہ کرسی ہے نہ کچھ ہے. جتنا پیسہ آیا ہوا ہے وہ گم ہو گیا, اور نہ اس میں چٹائی ہے, نہ اس میں پانی ہے, نہ اس میں باتھ روم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسکول میں ثانی کے بیٹھنے کے لیے نہ ہی کرسی ہے اور نہ ہی ڈیسک, نہ ہی
बाथरूम। जो क्लस्टर का जो बजट आता है सालाना इस स्कूल का जो है वो 17 लाख रुपए जो है वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन इस क्लस्टर बजट कहा जाता है क्योंकि जब में जाता है स्कूल में अब तक कोई ना काम हुआ है, ना ही डिस्क है, ना ही बच्चों के बैठने के लिए टाट है और ना ही टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सियां है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि कलिसुई कारेज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को भी 2 साल पहले आई का दर्जा दिया गया था, जहां पे सितम ज़रपी है कि जो प्रिंसिपल साहिबा है ना ही अभी 2 साल होने को है, उन्होंने अभी तक स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया है और कोयटा में बैठकर जो है वो तनख्वाह ले रही है। इस मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी की जरूरत है, उसके बगैर ये सुधार नहीं आ सकता। कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आप ये सुनते हैं कि जी ना अमला है, ना टीचर्स है, ना वहाँ पर डेस्क है, बच्चे बेचारे बैठे तालीम फिर भी क्या करें तो और करें तो क्या करें। अच्छा जी, आज फ्राइडे है और ये आप फ्राइडे के दिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत से मुताल्लिक आपको आगाही दें। हमारे यहाँ रीजन बीइंग क्योंकि वीकेंड आ रहा है और वीकेंड पे लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, और फिर खाते भी और वो चाहते हैं कि खाएं भी और साथ ही साथ वजन भी ना बढ़े। ये कितनी मासूमाना ख्वाहिश है। ये मासूमाना ख्वाहिश है। तो इस मासूमाना ख्वाहिश के तदारुक के लिए जाहिर है कि हमें काफी इक़दाम करने पड़ते हैं। लेकिन सॉरी टू कट यू, एक जब आप पूरा हफ्ता काम करते हैं ना और आपको थोड़ा अनवाइंड होने का मौका मिलता है वीकेंड पे, तो आप थोड़ा सा कहते हैं यार थोड़ा सा चीट डे बना लेते हैं, आज जरा सा ज्यादा खा लेते हैं, बिरयानी बना कोई अच्छा बनती भी खास डिश है घर में जो है वो खास डिशें अम्मा एहतमाम करती हैं कि बनाए, बच्चे की छुट्टी है, बच्चे की छुट्टी है, मेरा बच्चा मेरा लाडला दुबला हो रहा है, हालांकि वो दुबला नहीं हो रहा होता, वो इंतहाई सेहतमंद इंसान होता है, मगर हर माँ को अपना बच्चा जी वो इंतहाई दुबला पतला दिख रहा होता है। असल में बात ये है कि ओबेसिटी को बाज़ औक़ात ये न्यूट्रिशन से रिलेट किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो ओबीस लोग भी होते हैं वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं खा रहे होते। लेकिन अब क्या किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए। डाइट भी बहुत सख्त चीज़ होती है और वर्जिश तो बड़ी मुश्किल चीज़ है और एकदम कुछ होता भी नहीं है। तो टोटके उसमें आजमाए जा सकते हैं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब अपने टोटकों के साथ, ये ठकाठक बीच में जो आवाज़ आ रही थी ना बर्तनों के टकराने की, आप समझ गए होंगे कि उसकी वजह क्या थी। तो हंसते मुस्कुराते हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ खाली बर्तन नहीं है। क्या हाल है जवान? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये क्या आप जड़ी बूटियों का पूरा एक दत्था लेके आए हुए हैं? इन सब से वजन कम होगा? बिल्कुल होगा। खा लें सदफ एक साथ में, देखता हूँ। देखें इसमें देखिए बिस्यारखोरी या खाना पीना ज्यादा, या बाज लोग कहते हैं कि जी हम डाइट कर रहे हैं, हम खा पीने रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है। एक लाइफ स्टाइल यूं तब्दीली हुआ है कि चलना फिरना नहीं है, हर काम बैठ के ही हो रहा है और वॉक का कोई हिस्सा ही नहीं है। तो इसकी वजह से भी फालतू फैट बनना शुरू हो जाता है। जब फैट बनता है तो हाइपरटेंशन, इसके अलावा घुटनों में, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। की वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है? जी बिल्कुल इसी की वजह से होता है। और पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही होती है, पेट लटक जाता है नीचे को, बाजू यूं लटके हुए होते हैं, बाज लोगों के शोल्डर्स बाहरी होते हैं, गर्दन के पीछे की चर्बी बढ़ रही होती है। तो ये इन तमाम को कम करने के लिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत आसान रेमेडी है, इससे कम से कम आपके 4 किलो से लेके 7 किलो तक वजन कम होगा 1 महीने के अंदर। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। 1 महीने में 7 किलो, 4 किलो से लेके 7 किलो तक कम होगा। बताएं। और बहुत आसान रेमेडी है। और इसको ये किचन में मौजूद होती है जीरा सफेद, ठीक है, ये इसका पाउडर है। ठीक है, सफेद जीरा ये आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। कलौंजी हर घर में मौजूद होती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये बरगे सुद्दाब है, सुद्दाब के पत्ते, ये आप लेंगे 50 ग्राम। मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं हर पंसारी की दुकान पे। ये बरगे सुनोबर है, बरगे सुनोबर, जी हाँ, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। टोटली 4 चीजें हैं, कलौंजी, जीरा सफेद, बरगे सुद्दाब और बरगे सुनोबर। इनको ऐसे मिला लें, बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम चाय खाने से पहले या बाद में लें, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब इसको स्पून से लें और पानी पी लें, सादा पानी पी लें और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा 1 हफ्ते में कम से कम 1 किलो 1.25 किलो आपका वजन कम होगा। और दूसरा आप देखिएगा 10-15 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। वो जो पुराने रखे हुए कपड़े हैं ये वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। पहन लेंगे तो फिट आएंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और उसके साथ जो खाना खाते रहे, बिल्कुल खाना पीना आपने जारी रखना है, खाना पीना बंद नहीं करना। खाना पीना बंद करके जो कम करते हैं वो बाद में फिर बढ़ जाता है। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। एक दूसरा ये है कि अक्सर घरों में ग्रीन टी इस्तेमाल होती है। जी जी,
आप ग्रीन टी की जगह आपको एक टी छोटी सी हम बनाना बता रहे हैं, आप ये बनाइए। आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है, उसमें आप डालेंगे ये लेमन ग्रास 2 टुकड़े लेमन ग्रास। ये असगर मुकी बूटी है। क्या असगर मुकी बूटी, इसको पंजाब में खवी बोलते हैं। तो ये भी इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा है, किताबे तिब में नाम है। जहाँ एक चाय असगर मुकी बूटी, ये वो आ रही है सूरजमुखी वाला मुखी। जी मुखी यही है, ठीक है। ये 1 चाय वाली चम्मच, और इसमें हम डालेंगे कासनी के बीज। कासनी के तुख में कासनी, एक चाय वाली चम्मच कासनी। इसे 1.25 कप पानी में उबाल लें और रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लें। अच्छा। आप देखिएगा इससे आपको एक तो नींद अच्छी आएगी। 2 चीजें हो गई ना, ये 3 चीजें हुई। सबसे पहली चीज हमने लेमन ग्रास डाली 2 टुकड़े, 1 असगर मुकी बूटी 1 चाय वाली चम्मच, और तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच। इसे एक जोश देके उतार लें, आपका कहवा तैयार है। और इसे रात को सोने से पहले पी लें। और साथ में ये पाउडर जो मैंने बना के खाया, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें। आप देखिएगा आप दिनों में स्मार्ट होंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। और ये टेस्ट कैसा है? इसका टेस्ट कड़वा सब चाय की तरह है, कोई कड़वा नहीं है इतना। अच्छा। नहीं कड़वा नहीं है ये, और इसे इजीली पी सकते हैं आप। ये 15-16 साल से लेके 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मर्द और लेडीज दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, लेकिन इसे लेमन ग्रास से जो लोग कहते हैं कि उससे पथरी होने का शुभ होता है, तो वो कोई मिकदार की वजह से होता है या वैसे ही कहते हैं? मिकदार की वजह से भी होता है, लेकिन 12 लेमन ग्रास से हमने नहीं देखा किसी को पथरी हुई हो। अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं हुआ। बेतहाशा कैल्शियम ये चीजें खाने की वजह से भी होता है। और दूसरा बहुत ज्यादा राइस, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो मुंह में पत्थर से आ जाते हैं, हम नवाला निकाल लेते हैं लेकिन मुंह कुल्ली नहीं। मेरी बात सुनिए, एक चीज पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम जाते हैं ना, बड़ा कभी अफगान बोटी खाने का दिल चाहता है, कभी क्या, उसके साथ आपको पता है वो दुम्बे की चक्की के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ, और कभी किसी ने नल्ली निहारी खा ली, नल्ली बिरयानी खा ली, तरह तरह की चीज़ें, उसमें जो चर्बी और जो फैट कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसको फौरन नलीफाई करने के लिए, यानी कि नली को नलीफाई करने के लिए, वाह सदफ क्या बात मैंने की, कमाल है। तो क्या करें? देखें एक चीज मैं बताऊं, आप रोजाना तो नहीं खाते ना, हफ्ते में महीने में अच्छी तरह चबा के खाएं हर चीज को। पानी का टेक ज्यादा रखिए। और एक बूटी आती है ऊंट कटारा। अच्छा, ऊंट कटारा, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात को सोते वक्त पी लें। इससे ये फायदा होगा, एक तो फालतू फैट खत्म होगा, जिगर के गिर जो चर्बी आ जाती है जिसे फैटी लिवर कहा जाता है, जिगर का वर्म होना, ये उस चीज को भी दूर करेगी। इससे ऐसा तो नहीं होगा कि स्टमक बिल्कुल ये अपसेट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? इसमें ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉन्स्टिपेशन को तोड़े। हाँ, हाजमे के आपको बेहतर कर देगी, इससे कोई लूज मोशन नहीं होंगे। और जो अक्सर होता है हम ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आपको एक आपकी रूटीन बनी होती है, तो यू फील लाइक आपको चेस्ट बर्निंग हो रही होती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखें, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तेजाबियत होती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट फूलता है, फारा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ लें। 15 मिनट में आपका ये जो बर्निंग है, तेजाबियत है, पेट का फारा है, ये सब बेहतर हो जाएगा आपका। लेकिन ये कुछ दिन यूज कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए, पेट फूल जाता है ना, ब्लॉटिंग होती है, ये उसको भी। और दूसरा वर्म में मैदा, जैसे मैदे में फूलन महसूस होती है, चलते फिरते हुए भी सीने पे बोझ महसूस होता है, ये उसको खत्म करती है। एक बोझ होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपका एसडीएल या ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ हो तो उस सूरत में आपने अर्जुन की छाल लेनी है। अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए 2 महीने तक, और अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका एसडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी आपका कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर, बड़े जबरदस्त आज आपने हमें टोटके बताया, और ये सब घर में भी मौजूद हैं, और नहीं खुद ट्राई करते हैं ना आप? ये तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है, फिर सही है। और क्या दावा है इनका जी? कितना बताया ना, कितने किलो एक महीने? 4 से 7 किलो। बस आप करें, ट्राई करें। अशफाक आप ट्राई करें फर्स्ट पे, मैं आपको अब जो है ना, अब हम केक खा सकते हैं, तो अब आप केक लाएंगी, वो हम खाएंगे, और फिर उसके बाद वजन नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप मुझे टेस्ट करके पूरा 1 महीने में दिखाएं, देन पहले केक खाएंगे ना, फिर टेस्ट करेंगे। फिर मैं नहीं, केक पहले के बाद मोटे होंगे, मजीद 7 किलो हम वजन बढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद कम करेंगे। ये लोग मुझसे केक जरूर बनवाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अंडे भी हम स्पॉन्सर 2023-24 का। अच्छा जी, क्या खबर है जी? अच्छा जी, ये जी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं।
तो खबर बेसिकली ये मैं दे देता हूँ। खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के अंदर की कहानी सामने आई है। एतजाज एहसन जो है वो इसमें शरीक नहीं हुए और ज़राए ने ये बताया है कि नून लीग JUI की जानिब से तनकीद पर शदीद बरहम है। और फिर ये है कि ज़राए CEC के ये बताया, PP ज़राए ने बताया है कि नून लीग JUI की PP मुखालिफ बयानबाजी की मुखालफत भी की गई है। अच्छा, फिर ज़राए ने मजीद ये बताया है कि CEC का PP मुखालिफ बयानबाजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आया है। जहांगीर खान से जान लेते हैं, सब हम बताएंगे तो जहांगीर खान हाँ, इतने तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं और ये सारी बातें जहांगीर बताई गई, अंदरूनी कहानी मजीद क्या बता रही है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास इस वक्त जारी है। आज दूसरा दौर होगा। गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी कुछ यूं है कि इजलास के दौरान CEC अरकान की जानिब से नून लीग और JUI की जानिब से जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानबाजी की जा रही है और तनकीद की जा रही है, उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत भी की गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की आदत से मामले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजाजत भी तलब की गई। जरा ये भी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की आदत ने अपने रहनुमाओं को मुदल्लल अंदाज में सियासी मुखालफिन को उनकी तनकीद का भरपूर वार करने के लिए इजाजत दे दी गई है और उनको हिदायत की गई है कि वो पीपल्स पार्टी के वो वज़रा जो साबका हुकूमत का हिस्सा थे उनकी कारकर्दगी को सामने लाएं और मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दें। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को मिलने वाली जितनी वजारतें हैं उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं उनको भी मीडिया पर शेयर किया जाए, अवाम में जाकर उनको बताया जाए। इसके साथ साथ इस इजलास में क्योंकि एतजाज एहसन और लतीफ कोसा दावतनामे मौसूल होने के बावजूद शरीक नहीं हुए, तो इस हवाले से भी चेमगोइयां की गई। जो CEC के अरकान थे उनकी जानिब से इस बात का इजहार किया गया कि दोनों रहनुमा जो हैं वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि दोनों ने दावतनामे वसूल भी किए थे और उनको कबूल भी किया था। ज़राए के मुताबिक इस इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत और CEC अरकान की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ तनकीद की जा रही है और बयान दिए जा रहे हैं उस पर शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया गया और इजहार मायूसी भी किया गया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के इंतहाई करीबी इत्तेहादी रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से CEC इजलास को बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान को हर मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ भरपूर सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अब पीपल्स पार्टी को हद से तनकीद बनाया जा रहा है, जो गलत है। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत में 4 ऐसे वज़रा हैं, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हैं, जो वफाकी काबीना का हिस्सा है, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। CEC अरकान की जानिब से ये कहना था कि फवाद हसन फवाद हो, आहद चीमा हो या बाकी 2 जो अरकान है जो वफाकी काबीना का टेक्नोक्रेट के तौर पर हिस्सा है, वो बज़ाहिर और छुपे हुए दोनों तरह से जहांगीर बस इतना सा बता दें मुख्तसर के बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी शरीक थे इस इजलास में? जी बिल्कुल, इस CEC की जो सदारत है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। आज इसका दूसरा दौर होगा, जिसके बाद जरा ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आज फिर मीडिया को इस 2 रोज़ा CEC इजलास के हवाले से ब्रीफ भी करेंगे, बताएंगे भी जी कि CEC इजलास में क्या फैसले हुए और वेरी इंपॉर्टेंट इजलास, तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर इजलास। थैंक यू जहांगीर। अच्छा जी, ANF की जानिब से यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से मनशियात स्मगलिंग की एक कोशिश नाकाम बना दी गई। ANF के मुताबिक एयरपोर्ट कार्गो में कार्रवाई के दौरान सुराग रसा कुत्ते की मदद से इसको तलाश किया गया। 6 किलो 268 ग्राम आइस मेडिसिन और इंजेक्शन में छुपाकर लाहौर भेजी जा रही थी। सलाउद्दीन से जान लेते हैं। सलाउद्दीन बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एंटी नार्कोटिक फोर्स की कार्रवाई है। सुराग नसा कुत्तों की मदद से मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। कराची एयरपोर्ट के कार्गो पर पार्सल से भारी मिकदार में आइस बरामद हुई। 6 किलो 268 ग्राम आइस जो कि मेडिसिन और इंजेक्शन में शामिल करके लाहौर भेजी जा रही थी। डोली नामी सुराग नसा कुत्ते ने मुख्तलिफ पार्सल सूंघने के बाद मस्कूरा पार्सल से मंशियात बरामद की गई है। ANF और इंसानी वसाइल के साथ साथ पालतू जानवरों की महारत को भी इंसदाद मंशियात की कार्रवाइयों के लिए बरवकार ला रही है, जबकि ANF के मुताबिक पार्सल कराने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी जारी है। चलें जी, थैंक यू सो मच सलाउद्दीन। अब हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट की। वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम तज़किरा कर रहे हैं अब्दुल्ला का, जो ना सिर्फ ये कि वहाँ पर मौजूद हैं बल्कि वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तालीम के मैदान में। जी जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में
اور वहाँ पर आप ये देख लें कि फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और उन्होंने ये कामयाबी पाकिस्तान के नाम भी की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब ज़ाहिर है हम इस पर मज़ीद भी जान लेते हैं कि अब्दुल्ला ने कैसे इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद है होनहार तालिब इल्म अब्दुल्ला ज़मान। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। पहले तो ये बताइएगा कि यूएई में टॉप किया आपने, यकीनन ये बड़ी अचीवमेंट है, और कितने वैसे नंबर्स हासिल किए और कितने मार्जिन से आपने टॉप किया है? जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अचीवमेंट है। इस एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स थे 1100 थे, तो उसमें से मैंने 1076 मार्क्स स्कोर किए। अच्छा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अब्दुल्ला किस तरह डिफरेंट है पाकिस्तान के सिस्टम से? थोड़ा सा अगर आप एलेबोरेट करना चाहें तो। इधर एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ तो फेडरल बोर्ड में रहे, लेकिन हमें साथ साथ इधर के मिनिस्ट्री की भी एजुकेशन, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी फॉलो करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, और अब्दुल्ला थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, बड़े स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई में हमेशा अच्छा उनका एक रिकॉर्ड होता है, क्या आपकी रूटीन क्या होती है? लाइक किस तरह आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ होता है? कुछ आवर्स जो है वो आपने एलोकेटेड किए हुए होते हैं, जी मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? जी इसमें मैं हर दफ़ा एक अपना टाइम टेबल बनाता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, कि हर सब्जेक्ट में क्या आवर्स देने, फिर और इस तरह नहीं करता कि मैं लगातार पढ़ता हूँ, क्योंकि उस सब बच्चे की प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो मैं हर 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट्स की ब्रेक लेके अपने सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चीज़ें याद होती हैं। जब तक स्पोर्ट्स की बात है तो मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, तो मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हो, बट यू आर अ टॉपर, तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? फेडरल बोर्ड में कहते हैं कि आपने जितने भी अपनी स्टडी करनी है उससे कंसेप्ट समझ के स्टडी करनी है, और जब आप पेपर अटेंड कर रहे होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। अच्छा। पेपर टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करती है, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जैसे पेपर को अटेंड करने किस सारे क्वेश्चन वो पूछते होते हैं। तो ये सब क्योंकि अब हमारा सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, तो मुझे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वो क्वेश्चन नहीं अटेंड कर। अच्छा अब्दुल्ला, मैं एक सवाल को लेके बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी होती है, और मैं इससे बड़ा अनफेयर सवाल समझती हूँ कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनसे जब पूछा जाता है बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चों के जहन में जो पहले से ही फीड हुआ हुआ था नहीं, जो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बच्चे को फिगर आउट करने दें, उसको उसका एप्टीट्यूड देखें कहाँ पे वो क्या। लेकिन अब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जब आपको बाकायदा डिसीजन लेना पड़ेगा। सो आपने अब तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, कोई डेटा साइंटिस्ट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या फिगर आउट किया आपने? मैंने क्योंकि मेरा शुरू से कंप्यूटर साइंस में था, तो मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूं और फिर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाऊं, क्योंकि आप अभी हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी हर जगह छा गई है, तो मैं भी जाता हूं कंट्रीब्यूट। चलिए, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला ज़मान फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ नसीब करे। और बात ये है कि आप एआई की फील्ड में जाना चाह रहे हैं और अब इसमें बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी कुछ कोर्सेज कर लेने चाहिए, और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूँगी भाई अशफाक, अगर आपको पता हो ऐसी कोई ऑनलाइन क्लासेस है तो प्लीज़ डू शेयर विद अस, और अपने नाज़रीन के साथ भी किसी दिन इस पर सेगमेंट रखेंगे, क्योंकि अब जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो क्या करें, उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना, उन्हें अपने आप को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। तो कोई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आफ्टर ऑफिस टाइमिंग हम उसमें कुछ अवेल कर सकें, यहाँ से कुछ सीख सकें। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, नहीं? बिल्कुल, आइडिया तो बुरा नहीं। थैंक्स टू अब्दुल्ला की बातों से हमें आइडिया आ गया। बिल्कुल ठीक। वक्फा लें क्या है? वक्फा, और वक्फे के बाद मजीद भी हम बात कर सकते हैं। ब्रेक लेना है। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको बताएं जी, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन है। ज़ाहिर है उनकी जो मुद्दत है
बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो मुकम्मल हो रही है, पूरी हो रही है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने आज 8 मुकदमात की समाअत भी की है, जाते जाते भी उनकी जाने से जी आप देखें। और चीफ जस्टिस के साथ बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहरी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थी। मुकदमात में जी पेश होने वाले वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और शुक्रिया। मजीद बात कर लेते हैं, राजा मोहसिन हमें बताएंगे जी। देखिए, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन है और आज इस आखिरी दिन के मौके पर उन्होंने 8 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। आज उनके साथ 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थे। आज मुकदमात में जो पेश होने वाले वकला थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआएं भी दी उन्हें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप तमाम वकला साहिबान का शुक्रिया, मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया कि जिसने मुझे ये मौका दिया। मीडिया के हवाले से उनका कहना था कि मीडिया ने मुझे मुतहरिक रखा, जबकि बाज़ ने जो ताबुन किया उस पर उनका शुक्रगुजार भी हूँ। इन्होंने साथियों का भी शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आप जजेस के फैसलों पर जरूर तनकीद करें, लेकिन उनकी जात पर तनकीद ना करें, क्योंकि जजेस जो हैं वो खुद इस तनकीद का जवाब नहीं दे पाते। इसके साथ साथ उन्होंने आखिरी दिन एक दफा फिर जो उनका एक रिवायती जुमला है, गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स, कहा। और इसके साथ साथ एक वकील मियां बिलाल जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट में बतौर जज आपका पहला केस था तो मैं तब भी आपके सामने पेश हुआ था, और आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है तब भी मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। और इस तरह ये आज जो आखिरी दिन था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में, इस तरह उन्होंने 8 मुख्तलिफ केसेस की समाअत करके गुजारा। चले जी, अभी तो दिन गुजर ही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। अच्छा अशफाक, मैं आपसे पूछना चाहती थी, नाइट शिफ्ट आपने की है? जी जी की। मैंने भी किया। अच्छा, हर शोबे में नाइट शिफ्ट करना जी बहुत ही कोई मुश्किल काम लगता है सबको। अच्छा, मुझे वाकई बहुत, उसको बाज़ औक़ात बसा औक़ात कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट, लेकिन मामलात की संगीनी पे होता है कि मामला किस तरह का है। एक कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस होती है। एक तो होता है कि खुसूसी ट्रांसमिशन के चक्कर में मैं जो थी ना, जब मैंने एयरवाई ज्वाइन किया था तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं नई थी, अकेले रहती थी, दुबई में हमारा सेटअप था, तो मुझे बड़ा डर लगता था अकेले रात में सोते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती थी कि सर मेरी नाइट शिफ्ट लगा दें, तो मैंने पूरा 1 से 1.5 साल नाइट शिफ्ट। माशाल्लाह। तो ये बहरहाल मैं भी अपना तजर्बा किसी दिन वक्त हुआ तो शेयर करूंगा। लेकिन बात यह है कि अब जराइम को बढ़ती हुई जो वारदातें हो रही हैं उसके पेश नज़र कहा गया है कि लोग ज़ाहिर आते जाते हैं, अब SHOs को तैनात करने का फैसला किया गया है। और ज़्यादातर जो जराइम है रात 10 से सुबह 8 बजे तक होते हैं और फिर आधी रात के बाद शहरियों को निशाना बनाते हैं, और उस वक्त SHOs जो हैं और दीगर अमला दिन भर की मसरूफियात के बाद थक जाता है। फिर फूड स्ट्रीट्स वगैरह भी होते हैं। आधी रात के बाद शहरी क्यों है बाहर? अच्छा है। चले, तो इस पर बात कर लेते हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। बात तो वैसे दुरुस्त है कि SHOs को तैनात होना चाहिए, लेकिन अमूमन तो दिन में भी नज़र नहीं आते SHO साहिबान, तो रात में कैसे मेक श्योर किया जाएगा? ये तो आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, आई बिलीव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं बताता था, चलो जी, जो नाइट आपने नाइट शिफ्ट की बात की, बेसिकली कंसेप्ट इज क्वाइट डिफरेंट। जो हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि जो स्पेशल नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स लगाए जाएं जो शहर के, क्योंकि मेट्रोपोल जो होते हैं वो रात को जागते हैं, तो मेट्रोपोल जो है उनके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रात की पेट्रोलिंग बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। और जब भी हम क्राइम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो 2 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें जो प्रिवेंटिव साइड है दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जैसे डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं ये चीज़ बताऊं कि लाहौर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 42% आउट ऑफ 100% 42% ऑफ क्राइम जो है वो होता है आपका इन तमाम औकात कार में। और होता ही जी एग्जैक्टली सुबह 7 साढ़े 7 बजे से SHOs DSPs अपनी पेट्रोलिंग, कोर्ट के मैटर्स, पब्लिक डीलिंग और बाकी तमाम चीज़ें करते हैं। और फिर तमाम दिन चलते हुए जब 16-17 घंटे गुजर जाते हैं तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब 10-11 बजे वो दोबारा गाड़ी पर होंगे और गाड़ी पर आके वो तमाम पेट्रोलिंग करेंगे। के ऊपर ये फैसला किया है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कल्चर, ऑफिसर वाला कल्चर, एक मिजाज है
جب آپ کچھ بن جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اپنی پسند کی ہر چیز چاہتے ہیں, آپ کو شفٹ بھی اپنی پسند کی ملے, آپ کو اپنے ساتھ جو سٹاف ہے وہ بھی اپنی پسند کا ملے. تو تمام ایسے چوز اس معاملے میں کوپریٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے انہیں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں جو اصل میں نائٹ پیٹرولنگ کا یہ کنسیپٹ ہے, اس میں ہم ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز لگا رہے ہیں. وہ ڈیڈیکیٹڈ آفیسر جو ہیں دے ول ورک انڈر ایس ایچ او, بٹ دے ول کم ٹو پولیس اسٹیشن ایٹ 9 PM, اور اس کے بعد 10 بجے وہ جس وقت پیٹرولنگ سٹارٹ کریں گے وہ لڑکے ہیں جو کہ 700 آفیسرز کے انٹرویو کر کے ہم نے 84 سلیکٹ کیے ہیں. ان کا کام ہے کہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں جو بھی 2 ویلر 4 ویلر پیٹرولنگ ہے, جو پکٹنگ ہے فرام 10 PM ٹل 8 AM, اس کو وہ چیک کریں گے, سپروائز کریں گے. اور اسی طریقے سے جیسے ایس ایچ او کے انڈر ڈفرینٹ بیٹ آفیسرز اور ایڈیشنل ایس ایچ اوز ہوتے ہیں, اس طریقے سے کریں گے. اور میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ابھی 3 دن ہوئے ہیں ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے, اور ہمیں اس میں جو کرائم کی 15 کی کالز ہیں اس میں 39% ڈپ ہے, کیونکہ وہ فریش لوگ جو تمام کے تمام کر رہے ہیں وہ اس کو بڑا پراپرلی کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس میں KPIs ہم نے بنائے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کوانٹیفائیبل ہیں, اور جب رات کو کرائم کم ہوتا ہے, جب 15 کی کالز کم ہوتی ہیں, تو ہم وہ کریڈٹ نمبر جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں اس پیٹرولنگ آفیسر کے کریڈٹ میں, اور اس لحاظ سے وہ پیٹرولنگ آفیسر ہے ہی ول گیٹ این اپرچونٹی ٹو بیکم ایس ایچ او ایز ویل. تو اس میں ہم نے باقاعدہ انسینٹیو بیسڈ جی یہ تو بڑی زبردست ہے. باقی انڈسٹریز کو بھی فالو کرنا چاہیے. پیسے اگر زیادہ بھی دے دیے جائیں تو کوئی کیوں نہیں نائٹ شفٹ کرے گا؟ اچھا, تو یہ صرف ابھی سلسلہ لاہور میں ہی ہوگا یا پھر دوسرے پنجاب کے دوسرے شہر ہیں اس میں بھی کچھ بڑھایا جائے گا اس کا دائرہ؟ جی میں بتاتا چلوں, ہم نے اس کو لاہور سے سٹارٹ کر دیا ہے, اس کی سافٹ کرٹن ریزنگ کی ہے, اور اس کے مطابق اس میں تمام چیزیں ہم لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ بہتری کر رہے ہیں. اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ یہ تمام کر کے, کیونکہ یہ آئی جی صاحب اور CCP صاحب کے ڈائریکشن پہ کیا ہے, اور پھر اس کو جو ہمارے بڑے سٹیز ہیں گوجرانوالہ, فیصل آباد, راولپنڈی, ملتان, جو سٹی والے ہیں جہاں پہ CPOs ہوتے ہیں وہاں پر کریں گے, اور دین پورے پنجاب میں آئے گا. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کہ رات کی پیٹرولنگ سے اگر آپ کا کرائم 42% کرائم میں ڈپ آتی ہے تو اٹ مینز اوورال کرائم آپ کا بہت زیادہ کنٹرول ہوگا. اور میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ وی آر کمیٹیڈ, ڈٹرمنڈ اینڈ 100% اٹ از فار شیور کہ پبلک سروس ڈلیوری میں جو کرائم پروینشن ہے دیٹ از دی میجر تھنگ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میک ڈفرینس. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے DIG آپریشنز لاہور. زبردست ہے جی, اور سب کچھ ریسرچ بیسڈ ہے, ڈیٹا بیسڈ ہے. لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں تو ایسا لگتا ہے 24 گھنٹے ہی کرائم. بالکل ایسے ہی ہے, کرائم ہر وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ ہر جگہ اس بارے میں سارٹ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک یہاں پر بھی یہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ کون سے ٹائمنگز میں, جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس ایریا, اس ویسینٹی میں سخی حسن والا, 5 اسٹار چرنگی والا کیوں ہو رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ یہی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ زیادہ ہے. تو چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرے, جن کا ویکینڈ ہے تو شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.